Good morning, students. Today, our topic of discussion is inverse of a matrix. Suppose we have a square matrix A of order 3 by 3. So, to find out the inverse of a matrix A, first of all, we denote inverse by this sign. This is called inverse of a matrix A. What is the first and most important condition? That determinant of matrix A should not be equal to 0. What does this means? This means that matrix should be non-singular. Non-singular means its determinant should not be equal to 0. If the determinant of a matrix is equal to 0, that means it is a singular matrix. And we will not find the inverse of a matrix. It is impossible to find the inverse of a singular matrix. So, if this first condition fulfills, then we will find out the inverse of a matrix. And what is the formula for that? Adjoint of A upon determinant of A. Adjoint of A upon determinant of A. Suppose this is the matrix A11 means first row, first column, first row, second column, first row, third column. Second row, first column, second row, second column, second row, third column. Third row, first column, third row, second column, third row, third column. This is the positioning of this matrix. And what about adjoint? Adjoint of A means, first of all, we will find out what cofactors C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. C instead of A, I use the word C. C represent cofactors. A represents elements of A matrix. This is the positioning of this matrix. We always find inverse of a square matrix. Square matrix means rows, m rows should be equal to n columns. M rows, when m rows is equal to n columns means it is a square matrix. And order is 3 by 3. 3 rows and 3 columns. Clear? So, for finding out adjoint of A, first of all we will find cofactors. Then we will take transpose of that particular cofactors. So, this is the way to find out adjoint, and for determinant, I will explain that formula also. So, to explain the inverse of a matrix, let us first take any A matrix of order 3 by 3. So, let us take a matrix. Suppose, let us suppose this is A matrix. I am taking 3 by 3. Okay, elements are 1, 2, 1, 3, 0, 1, 2, 1, 5. So, I have taken this matrix. So, first of all, first condition is it should be non-singular. So, that means first of all we have to find out determinant to see whether it is non-singular or not. So, for to finding out the determinant, what is the formula? We will expand any. It's our choice कि हम first रो को एक्सपैंड करें या फर्स्ट कॉलम को, किसी को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी, किसी को भी एक्सपैंड करके हम अपना डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं. सो वी आर चूजिंग फर्स्ट रो. तो फर्स्ट रूल, जो फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं उसका फर्स्ट साइन क्या होएगा? पॉजिटिव. तो एज इट इज 1 को लिख रहे हैं. 1, ध्यान से देखिए, A11 पे 1 की पोजीशनिंग है. अब इसकी कॉलम 1 जहां पर सिचुएटेड है उस कॉलम को और उस रो को छोड़ देंगे. ब्रैकेट स्टार्ट होगी,
क्या रह गया हमारा 0 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1 क्लोज, यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को जो बचे हुए हैं आपस में माइनस कर दिया। देन अब नेक्स्ट साइन हम लेंगे, यहां पॉजिटिव लिया है, नेक्स्ट साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब सेकंड रो, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 2, उसको ले लेंगे। अब ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दिया, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1। अब प्लस 1 हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया 1, और अब थर्ड रो और सॉरी थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दिया, तो वी हैव 3 माइनस 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0। तो अब हमारे पास क्या आया 1, 0 माइनस 1 माइनस 2, 15 माइनस 2 एंड प्लस 3। तो ये हमारे पास आया -1 माइनस 2 इंटू 13 प्लस 3। तो वी आर लेफ्ट विथ -1 माइनस 26 प्लस 3। तो हमारे पास -27 प्लस 3, तो -24 क्या है हमारा डिटर्मिनेंट, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। Hence, it is possible to find what? It is possible to find inverse of this matrix. So, to find out the inverse, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना है -24, और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इनवर्स। तो लेट अस फॉर इनवर्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट तो मिल गया, क्या रह गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट को निकालने के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट कोफैक्टर्स फर्स्ट एंड देन वी विल व्हाट वी विल डू, कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करके उस मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे हम, ट्रांसपोज। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स। तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है कौन सी है हमारे पास, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हम दोबारा से लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स के हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे, वी हैव 1 2 1 3 0 1 एंड 2 1 5, और ऑर्डर क्या था 3/3। तो सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट कोफैक्टर्स। सो फॉर फाइंडिंग आउट कोफैक्टर्स, यानी कि C11 कैसे निकालेंगे हम, -1, ये हमारा फॉर्मूला है -1। कोफैक्टर की पोजीशनिंग क्या है 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वो इसकी पार आ जाएगी। उसके बाद यानी कि हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो आगे क्या बचा 0 इंटू 5 -1 इंटू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 -1 की पावर 2 एंड 0 -1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू -1। क्योंकि ये स्क्वायर है तो -1 स्क्वायर मीन्स ये 1 में कन्वर्ट हो गया, और ये -1 और हमारे पास -1 आ गई। C12 निकालेंगे, देन अगेन -1 की पावर 1 + 2। अब ये हमारे पास क्या आ गया 1 + 2, इसकी पावर आ गई, देन 3 इंटू 5 -2 इंटू 1, यानी कि हमने क्या किया, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हमने छोड़ा, तो हमारे पास 3 इंटू 5 2 इंटू 1, एंड दिस इज -1 की पावर 2, और हमारे पास 3, और हमारे पास आया 15 -2। तो ये आ गया हमारे पास -1 इंटू 13, दिस देयर कम्स -13। फिर हमारे पास आ गया C13 -1 की पावर 1 + 3, ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 1 -2 इंटू 0 -1 की पावर 4, और ये हमारे पास आ गया 3 -1 की पावर 4 और 3 -0। तो ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया 3।
देन हमारे पास सेकंड, अब हम सेकंड रो स्टार्ट कर दी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 2 + 1 जो इसकी पोजीशन है। फिर अब हमने क्या किया, सेकंड जो हमारा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को, ये हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई है और फर्स्ट कॉलम है तो इसको छोड़ देंगे। हमारे पास क्या बचा फिर, हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास है 10 - 1, तो ये हमारे पास आ गया -1 × 9। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, C22 आ गया -1 की पावर 2 + 2 और ये हमारे पास आ गया 5 - 2 और ये आ गया -1 की पावर 4 × 3, तो 1 × 3 ये हमारे पास आ गया 3। देन C23 हम निकालेंगे, तो हेयर कम्स -1 की पावर 2 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 1 - 4, तो ये आ गया -1 और -3 और ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ये इंटू था तो ये आ गया हमारे पास 3। उसके बाद हम लगाएंगे 3 1, तो ये हमारे पास आ गया -1 की पावर 3 + 1 2 - 0, दिस इज इक्वल टू 1 × 2, तो ये आ गया हमारे पास 2। C32 हमारे पास आ गया -1 की पावर 3 + 2। मैं मेथड आप सबको बता चुकी हूँ एक बार, हम रिपीट नहीं कर रहे उसको। एंड ये हमारे पास आ गया 1 × 2, तो ये हमारे पास आ गया 2, यानी कि -1 - 2 था, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपस में, तो हमारे पास बच गया 2। उसके बाद C33 में हम देखेंगे -1 की पावर 3 + 3, तो ये हमारे पास बच गया 0, ये देखो ये है ना, तो 0 -6, तो ये हमारे पास आ गया 1 × -6, तो ये आ गया हमारे पास -6। तो अब हम कोफैक्टर्स जो है उनको अरेंज करेंगे, तो ये मैट्रिक्स हमारी अगर इसकी पोजीशनिंग देखें, देखो -1 -13 देन 3 अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। अब हम इसको लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ये देखिए C11 C12 C13 हम इसको लिख रहे हैं अपनी मैट्रिक्स को, तो ये हमारे पास आ गया -9 3 3 2 2 -6, तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब हमने इस कोफैक्टर की मैट्रिक्स का क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। हम इस सारी मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम्स में, तो ये फर्स्ट रो को कॉलम में लिख देते हैं -1 -13 3, सेकेंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं -9 3 3, थर्ड रो को भी कॉलम में 2 2 -6, तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट। और अब A इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट क्या आ गया हमारा, और डिटर्मिनेंट हमें पहले ही पता है कितना है, हम निकाल चुके थे -24, तो ये आ गया हमारा A इनवर्स। जब हमने क्या किया, अपनी कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज लिया, तो ये हमारा एडजॉइंट बन गया सारा, दिस इज द एडजॉइंट। और यहाँ हमने क्या किया, एडजॉइंट को लिखा और इस अपॉन क्या आना था हमारा डिटर्मिनेंट, उसकी जगह हमने -24 1 / -24 लिख दिया। इनवर्स है उसका डिवाइड है तो 1/24, सो दिस इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक बार हम इसको रिपीट करते हैं सारे के सारे को, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का हमारे पास ये पोजीशनिंग देखी थी कि 3 × 3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है, A1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, M रोज N कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम देखते हैं कहीं वो सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं, नॉन सिंगुलर होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है मींस वो सिंगुलर है, तो हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। तो फिर सबसे पहले हमने भी डिटर्मिनेंट देखा, हमने डिटर्मिनेंट निकाला, हमारा डिटर्मिनेंट -24 आया, दैट मीन्स कि हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने इन्वर्स फाइंड आउट देखा कि हम कर सकते हैं, तो उसके बाद हमने इन्वर्स को फाइंड आउट किया।
और इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने कोफैक्टर्स पहले निकाले। कोफैक्टर्स को निकालने के बाद हमने उन कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया और वो ट्रांसपोज हमारा बन गया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को निकालने के बाद हमने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज़। सो -1/24 और साथ में हमने लिख दिया एडजॉइंट। सो दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।